सुबह बखैर और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश। और दोस्तों, आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़, तेरी सताइश हो कि तू बुज़ुर्ग और सच्चा ज़िंदा कादिर मुतलक आसमानी बाप है। खुदावन, हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना तेरी निगाह में मकबूल हो और आज का ये दिन हमारी ज़िंदगी में बरकतों भरा दिन ठहरे, खुदावन यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, सुहानी सुबह के लिए। और आइए खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश करें और मिलकर ज़बूर नंबर 99 गाएंगे। यहोवा राज अब करदा है, कुल लोक मनावन डर, ओ करो बीम ते बैठा है कंबे ज़मी थर थर। क्वायर के साथ मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए कि यहोवा राज अब करदा है, कुल लोक मनावन डर, ओ करो बीम तो बैठा है कंबे ज़मीन थर थर। और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दी हमने, खुदा उनकी तारीफ़ की यकीनन इस ईमान के साथ कि खुदा हमारी इस हम्द व तारीफ़ को कबूल फरमाए। और अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बड़ी मोहतरम बहन साइमा मौजूद हैं और हम अपनी बहन के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत सुनेंगे। जी साइमा। हमारे लिए आज का कलाम मत्ती की अंजील उसका 2 बाब पहली 2 आयत। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा उनकी ख़ास बरकत। दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन बहुत ही खूबसूरत आयात के लिए जो हमारे लिए तिलावत हुई। और इन आयात का बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम के साथ है। और हम मजूसियों के इस वाक़े से बखूबी आगाह हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह के तजस्सुम के मौके पर पूरब से कई मजूसी उसको सिजदा करने आए
اور آج شاید ہم نے سونا، مر اور لبان کی وجہ سے مجوسیوں کی تعداد کو بھی 3 کر دیا، اور یہ گاتے ہیں کہ ہم 3 بادشاہ مشرق سے ہیں، سجدہ کرنے ہم آئے ہیں، سفر دور کا پیچھا نور کا کر کے ہم آئے ہیں۔ لیکن آج یہ بات سیکھنے کی ہے کہ مجوسی 3 نہیں بلکہ مجوسی کئی تھے، اور وہ خداوند کی تعریف کرنے، اس کو سجدہ کرنے، اس کی عبادت کرنے کی غرض سے جمع ہوئے۔ اور میرے بھائی میری بہن، جس وقت ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو چند ایک باتیں ہیں جو ہمیں مجوسیوں کے اس عمل میں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجوسی تھے کون؟ اور اگر ان مجوسیوں کے لیے بالکل آسان لفظوں میں بات کروں تو یہ مجوسی حقیقت میں صاحب علم اور دانش لوگ تھے، جو کہ ستاروں کا علم بھی رکھتے تھے، جو کہ علم و حکمت سے معمور تھے، جو حاکم وقت بھی تھے، اور ان سبوں پر خداوند یسوع مسیح کے تجسم کا بھید عیاں کیا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ آسمان پر جو ستارہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ستارہ معمولی ستارہ نہیں، بلکہ یہودیوں کے ہاں ایک بادشاہ کی پیدائش ہوئی ہے، ایک بادشاہ کا تجسم ہوا ہے۔ یعنی وہ بادشاہ کہ مکاشفہ کی کتاب جس کو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، جس وقت ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں دیکھیں تو مجوسیوں کے ان سارے کردار میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے تحقیق کی، اور وہ تحقیق کرتے ہوئے یسوع تک پہنچے۔ اور اگر ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ مجوسیوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ اور دوستو، آج جس وقت ہم مجوسیوں کے اس سوال کو جو ہیرودیس بادشاہ کے سامنے جو آلریڈی حق میں وقت تھا، جب اس سے یہ استفسار کیا گیا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ کلام خدا کے مطابق کیا تھا؟ گھبرا گیا، جھنجھلا گیا، ڈر گیا کہ میرے ہوتے ہوئے اور کوئی بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگرچہ وہ یہ مقام بھول چکا، اگرچہ وہ یہ وقت بھول چکا تھا کہ مسیح خداوند کا تجسم ہو چکا، لیکن مجوسی اس بات کو فراموش نہ کر پائے۔ اور جب انہوں نے آسمان پر نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ ایک ستارہ دیگر تمام ستاروں سے زیادہ روشن اور بڑا ہے، وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتے ہوئے یروشلم تک پہنچ گئے۔ انہوں نے تحقیق کی اس خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کی، اور اس کو پا لیا۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج ہم بھی اس بات کو سوچیں کہ آج کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے تحقیق کرنے کا عمل اپنی زندگی سے جاری کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس کو ڈھونڈنے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو حاصل کرنے کی جستجو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یا بس نامی اور فرضی مسیحی کی طرح ہم اپنی زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اور دوستو، اگر ہم گنتی کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں اس تحقیق کی بنیاد دکھائی دے گی کہ جہاں خدا ان کے زندہ پاک کلام میں یہ تحریر کیا گیا کہ یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا۔ اور دوستو، یعقوب سے وہ ستارہ تو روشن ہو گیا، اس فلک پر نمودار ہوا، اور جو تحقیق کرنے والے تھے، جو صاحب علم تھے، جو صاحب دانش تھے، انہوں نے اس ستارے کو پرکھ بھی لیا، اس کو جان بھی لیا، اور اسے حاصل کر کے اس کو سجدہ بھی کر ڈالا۔ اور وہ ستارہ کون ہے؟ وہ یسی کے تنے سے نکلی ہوئی وہ کمپل ہے، وہ ابن مریم ہے، وہ ابن داؤد ہے، جو ہماری خاطر تجسم اختیار کر کے اس زمین پر ظاہر ہوا۔ اور صرف انہوں نے تحقیق ہی نہ کی، بلکہ وہ قربانی بھی اس کے حضور گزراننے کو آئے۔ اور آج جب خدا کے کلام کو دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ وہ 3 قسم کی قربانیاں خدا ان کے حضور لے کر آئے: سونا، مر اور لبان۔ سونا ظاہر ہے کہ بادشاہت کی علامت، مر جو ہے وہ مسیح خداوند کے موت کی علامت، اور لبان جو ہے وہ اس کے شاہی کاہن ہونے کو، سردار کاہن ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔
और दोस्तों, आज हमारे लिए सीखने की बात क्या है कि क्या आज हम खुदावन के हजूर अपने मालो दौलत, अपने वक्त की और अपने ऐशो इशरत की कुर्बानी देते हैं या नहीं? क्योंकि आज खुदावन चाहता है कि उसको सिजदा करने से पहले, उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करने से पहले हमें अपने मालो दौलत की, अपने वक्त की, अपने बदन की कुर्बानी उसको नजर करना है। और तीसरी बात जो हमें खुदा उनके कलाम में दिखाई देती है वो क्या है कि उन्होंने यस्सु के हजूर नजरें चढ़ाई, यानी सोना, मुर और लुबान उसकी नजर किया। और दोस्तों, उन्होंने अपने डिब्बे खोल खोल कर यस्सु के सामने सोना, मुर, लुबान रखा और उसको हर तरीके से बादशाह तस्वुर किया। उसको हर तरीके से उन्होंने ये जाना कि यही हकीकत में बादशाहों का बादशाह है, यही शहनशाहों का शहनशाह है, यही खुदावंदों का खुदा है। और आज दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के कलाम पर बगौर अमल करने के लिए अपने आप को इक्विप्ड कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए ये सीखना भी ज़रूरी है कि जब हमने उसकी तहकीक भी कर ली, जब हमने उसको नजरें और कुर्बानी भी चढ़ा दी, तो फिर उसको सिजदा करने से, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने से, उसके हजूर अपने आप को झुकाने से कौन सी चीज़ हमें रोक सकती है? यकीनन कोई नहीं। और याद रखें कि जो सिजदे का जिक्र किया गया, तो सिजदा जो है बेसिकली वो आजी और इनकसारी, हलीमी और फरोतनी का निशान है कि जब हम उसको सिजदा करते हैं, जब हम उसके हजूर में अपने आप को झुकाते हैं, तो दर हकीकत हम उस बादशाहों के बादशाह के हजूर अपने आप को खाकसार बनाते हैं। हम उसके हजूर में अपने आप को झुकाते और मसीह की अजमत को कबूल करते हैं। और मजीद ये बात वाज़े होती है कि यीशु प्रस्तिश, हम्द और सिजदों के लायक है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचें और इस पर गौर करें कि क्या आज एक अच्छे मजूसी की तरह मैंने खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम की तहकीक की है? क्या मैंने अपनी नजरें और अपनी कुर्बानी उस तक पहुंचाई है या नहीं? गौर करें इस बात पर कि क्या आज मैंने उसको सिजदा करने का फैसला किया है या नहीं। और मेरे अजीजों, अगर आज मैं अपने नजरें और कुर्बानियां उसको नहीं चढ़ाता, अगर आज मैं उसकी तहकीक नहीं करता, मैं उसकी तशहीर नहीं करता, अगर आज मैं उसको सिजदा नहीं करता, तो ये मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन अगर उसको मैंने अपनी ज़िंदगी का बादशाह तस्वुर किया है, अगर मैंने उसको अपनी ज़िंदगी का खुदावन जाना है, तो यकीन कीजिए कि तमाम तर नज़रें, तमाम तर मालो दौलत, तमाम तर कुर्बानियाँ और फिर सबसे बढ़कर सिजदा जो है वो खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों से ये सब चीज़ें यस्सु की शान के लिए ज़ाहिर होती रहेंगी। आइए आज हम अपने आप को, यस्सु को, अपनी वक्त की कुर्बानी, अपने रिफाकत के नजरें और इसके साथ साथ खुदावन के जलाल के लिए अपने आप को झुकाते हुए सच्चे तौर पर उसके हजूर में हाजिर करें, ताकि खुदावन का जलाल हमारी ज़िंदगी पर ठहरा रहे और खुदावन की बरकत हमेशा हम पर साया किए रखे। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमारा बादशाह हम तक पहुंचा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आए बादशाहों के बादशाह, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी बरकत और कुव्वत हम सबों पर कायम व दायम रहे और हम तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ होता रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं इस खूबसूरत रफ़ाकत के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कल फिर एक नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ आपके हजूर में आपका भाई पादरी सलमान यूसुफ हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और जाते जाते यही गुजारिश है कि इस मॉर्निंग डिवोशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग खुदा उनके कलाम को सुने, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।